members, and for joining us today for another enriching session of Golden Charcha. I'm CA Rashi Santhalia, and I have the privilege of coordinating today's session. Golden Charcha has truly emerged as a golden initiative of EIRC, bringing cutting edge knowledge directly to our streets. This initiative reflects our commitment to continuous professional development and ensuring that every member of our fraternity stays equipped with the latest tools and techniques. Before we proceed, I would like to express our heartfelt gratitude to CA Vishnu Kumar Talsyan, our dynamic chairman of EIRC, whose visionary leadership and commitment to professional excellence has made initiatives like Golden Charcha possible. Our today's session is Know Yourself the Scriptures Way. Today we have with us a distinguished guest speaker, CA Manish Barelia. I would like to extend a warm welcome to you, sir, and respectfully request you to share a few words with us. Over to you, sir. Rasi, am I audible? Yes, sir, you're Okay. Respected speaker, C. Arun Agarwal, distinguished members, fellow professionals, and dear friends. A very warm good evening to all of you. It is my privilege and honor to welcome you all to today's seminar organized by EIRC on a truly timeless and thought-provoking topic, Know Yourself the Scriptures Way. As professionals, we spend most of our time in numbers, balance sheets, compliances, and deadlines. But in this pursuit, we sometimes forget the most important balance sheet, the one of our own life. To know ourselves is not just a philosophical exercise, it is the foundation of living a meaningful and fulfilling life. Our ancient scriptures, whether it is the Bhagavad Gita, the Upanishads, or other timeless texts, have always emphasized the importance of self knowledge. They remind us that while knowledge of the external world gives us success, knowledge of the inner self gives us peace, clarity, and purpose. It helps us understand who we are beyond our roles, titles, or achievements. True success lies in aligning our actions with our inner self, and that is what knowing yourself is all about. We are truly fortunate to have with us CA Arun Agarwal, an accomplished professional, respected guide, and an inspiring speaker who will enlighten us today on this beautiful subject. I am sure his insights will help us connect the wisdom of scriptures with our day-to-day life and profession. Before I hand over the session to him, let me once again express gratitude to EIRC for organizing such a relevant seminar and to all of you for being here with open hearts and open minds. Let us listen, reflect, and take back practical lessons that can guide us not just in our career but in our journey of life. Thank you, and over to CA Arun Agarwal. Before I would like to thank CA Vishnu Kumar Dalsyan, our chairman, for joining us today and making Golden Charcha possible. And I would like to hand over the mic to sir. Thank you, Rasi. Thank you, Rasi. Thank you, Manish ji. And thanks, Arun Bhaiya, for consenting to be one of the speaker today. However, he's about to go to out of station. And thanks so much. Hence, we instead of Sunday, we are doing Saturday on his taking his pre-scheduled program. And it is not required how I speak, and it is important how Arun Bhaiya speak to us and how we learn something from him. Yes, I can say Golden Church is very good initiative taken by ERC, so as we can touch the charter economy from village to town, so that each and everyone can be given an opportunity and they can be given promotion to use the ERC platform for which I am here. And thanks Maniji, also he's consented us to be one of the one of the special address. So without wasting time, happy festival days which is about to come, Durga Puja, Diwali all together. And thank you so much for calling me also again. Here you can see the Amar Agarwal ji and also Sethia ji is here in personal, in physical mode.
is also listening your lecture, sir. Your Seth is the company secretary, and Amar Agarwal is the chartered accountant. So thank you so much, sir. And over to Rasi to please conclude this session ahead. Thank you, sir. It is my privilege to introduce CA Arun Kumar Agarwal, a fellow chartered accountant with vast expertise in indirect tax and GST. He has been a consultant to leading nations and multinational companies and has trained revenue officials of Central Excise and Commercial Taxes in West Bengal and Jharkhand. Mr. Agarwal has served 6 years on GST Committee of ICI, is chairman of the GST and Indirect Taxes Council of Merchants Chamber of Commerce, and has authored several books and ICI publications on VAT and GST. He has also been president of ACAE, Kolkata, and an active contributor to professional forums and social service through Lions Club International. We welcome you, sir, and would like you to continue the session. Thank you, Rasi. At the outset, friends, I am thankful to EIRC, led by my dear friend Sri Vishnu Tulsian as the chairman, Manish ji, the special address by Manish Barelia ji, Rasi and the team at EIRC for giving me this opportunity to speak on a particular topic which is very close to my heart. It is not a topic of profession, but it is a topic of passion. For me, it is a passion. The topic given to me is whether Vishnu asked me कि क्या topic पे बात करना चाहिए, what should be the topic. The background is that yes, on spirituality, how can we take something, how can we relate as professionals. So I also being a professional and having pursuing this subject, so I thought why not we should discuss on that and to have a glance on it. It's a vast subject. हम लोग बोलते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि कथा actually अनंत है, it is never ending, but it is necessary at the same time that we show a glance of this to our professional friends or fraternity, our members from the profession. So some cursory discussion we can definitely have within just 1 hour, that too out of 1 hour some formalities etc. take another 15 minutes, so hardly we have 45 minutes. I would rather prefer that we should have some time for Q&A as well, so maybe hardly 30-35 minutes of talk and then maybe another 10-15 minutes of Q&A. So that is how it is going to flow, and that is going to be the flow of the discussion today. So I would like to start with the topic. The theme of the session has been know yourself the scripture way, the scripture way. Now, why this topic I chose? Know yourself the scripture way. Scriptures means we know. Scriptures means our scriptures, that is Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, तो शास्त्र में, शास्त्र के भाषा में, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र में जो नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए नो योरसेल्फ, दैट मींस हमको अपने बारे में जानना. वी शुड नो आवरसेल्फ, हम कौन है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक क्वेश्चन, ब्रह्म जिज्ञासा, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा. बेसिक क्वेश्चन है ये कि मैं कौन हूँ. नो योरसेल्फ, सो नो माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन हूँ. तो मैं कौन हूँ, यही बेसिक क्वेश्चन है, और इसके ऊपर में ही पूरा जो शास्त्र है, द एंटायर स्क्रिप्चर्स आर ऑन दिस ओनली. We will discuss on that gradually in next few minutes. And let me at the outset also introduce or acknowledge that this entire discussion which I am going to have is based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON Kolkata. I am since associated with ISKCON, so it is my, whatever I speak, I talk, that is based on the teachings of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Now friends, this Brahma Jigyasa means when we talk about Brahma Jigyasa, or the basic question, who am I?
on this, we can start with the discussion like this. We as human beings are always inquisitive. We always ask so many questions, starting from your birth. जब से पैदा हुए, जिस दिन से भी बोलना सीखा, जिस दिन से भी क्वेश्चन करना सीखा, तो हजारों लाखों क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? से स्टूडेंट टू अ टीचर, एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन जब सीए पढ़ रहे थे, उसका ट्यूशन ले रहे थे, कभी भी, अभी भी कोई सेमिनार वर्कशॉप में जाते हैं, तो वी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू द फैकल्टी कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, ये क्यों होता है, ये इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान, सो मेनी क्वेश्चन। व्हेन अ पेशेंट गोज टू अ डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ तकलीफ क्यों होता है, वहां पे तकलीफ क्यों होता है, ये इसका क्या निवारण है, ये कैसे ठीक होगा, उसका कौन सा मेडिसिन होगा, ऐसा हो तो क्या करें, वैसा हो तो क्या करें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब बायर टू अ सेलर कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का है, क्या मेक है, क्या डिजाइन है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सो मेनी क्वेश्चन इन डे टू डे लाइफ अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ द ओपन स्काई। हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं, तो आसमान इतना बड़ा खुला आसमान है, सी की तरफ समुद्र, हम लोग सागर में जाते हैं, हम सी बीच पे जाते हैं तो समुद्र की तरफ देखते हैं। एनिमल किंगडम, इतने तरह के एनिमल्स हैं, इतने तरह के बीस्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इतने तरह के, हर एक का अलग अलग बिहेवियर है, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, रेप्टाइल किस तरीके से चलता है, एक्वेटिक मतलब फिशेस वगैरह किस तरह से चलती है, उसकी कौन सी दुनिया है। कभी अगर हम लोग सबमरीन या नीचे पानी के नीचे जब जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यूबा डाइविंग वगैरह में अगर जाते हैं, कभी कभी एज ए टूरिस्ट भी हम लोग जाते हैं, तो अंदर में जाकर देखते हैं वो एक नई दुनिया है, उसके अंदर इतने तरह के फिशेस हैं, उसके अंदर में इतने तरह के प्लांट्स हैं, कोरल्स हैं, अलग अलग दुनिया देखते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये क्या है, वो कौन सी फिश है, वो कौन सा जानवर है, इसका क्या है, इसके क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इवन एक एनिमल भी क्वेश्चन करता है, वो भी जानना चाहता है ये क्या है। आज एक एनिमल जो एक फिश है, तो वो अपना एक्वेटिक वर्ल्ड में ही इट इज एक्वेंटेड विथ। अगर हम एज ए ह्यूमन बींग अगर हम उसके अंदर एंटर करते हैं, तो हमको देखते हैं, उसको पता है कि ये दूसरा दुनिया का आदमी है, तो वो चौकन्ना हो जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है कि ये कौन है, क्यों आया है, ये क्या करेगा। इस तरह से आप किसी भी एनिमल को देखेंगे तो वो भी क्वेश्चन करता है, वो इट इज ऑल्सो इंक्विजिटिव, एनी एनिमल फॉर दैट मैटर। तो सवाल ये होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन्स क्वेश्चन यानी कि ह्यूमन बींग्स क्वेश्चन एंड एनिमल्स क्वेश्चन। हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं और जो एनिमल्स है उनके जो क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस एट ऑल? इफ वी लुक एट आवर ओन लाइफ, हम लोग अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, और जो कुछ भी करना चाहते हैं, या वट एवर वी वांट टू अचीव, इट ऑल आर एक्टिविटीज मूव अराउंड दिस 4-5 थिंग्स। व्हाट इज दैट 4-5 थिंग्स? प्रिसाइजली द फर्स्ट 4: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, सेल्फ डिफेंस। हमको अपना सेल्फ डिफेंस चाहिए। सम मेंटल हैप्पीनेस, ठीक है, वो रिलेटेड भी हो गया। तो बेसिकली प्रभुपाद सेड दैट ये 4 एक्टिविटीज है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, तो वी वांट टू इम्प्रूव आवर ईटिंग, यानी कि मेरे को अच्छा अच्छा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मतलब ईटिंग का क्वालिटी, ईटिंग का ग्रेड, उसके ऊपर में उसको इम्प्रूव करने के लिए वी डू ऑल आर एफर्ट्स गो टू दिस ईटिंग। सिमिलरली स्लीपिंग, सिमिलरली मेटिंग, डिफेंडिंग, सेल्फ डिफेंस। हमको ये चारों एक्टिविटीज में और बेटर करना है और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए हम लोग सारे एफर्ट्स करते हैं। इंटरेस्टिंगली एन एनिमल ऑल्सो डू ऑल दीज थिंग्स, एंड यही करता है वो भी इससे बाहर कुछ नहीं करता है। हमको भी ईटिंग करना है, उसको भी ईटिंग करना है, हमको भी स्लीपिंग करना है, उसको भी स्लीपिंग करना है, हमको भी मेटिंग करना है, उसको भी मेटिंग करना है, हमको भी सेल्फ डिफेंस चाहिए, एनिमल्स को भी सेल्फ डिफेंस चाहिए। एंड देन इफ यू थिंक अ लिटिल फर्दर, लेट्स से टॉक अबाउट ईटिंग। तो एनिमल का ईटिंग में और हमारे ईटिंग में क्या डिफरेंस है? हम लोग, एक एनिमल जो है वो पूरा नेचुरल फूड खाता है, उसको कोई मसाला नहीं चाहिए, कोई तेल नहीं चाहिए, कोई कुकिंग के लिए अरेंजमेंट नहीं चाहिए, कोई बढ़िया ब्रांडेड हॉब्स नहीं चाहिए, चिमनी नहीं चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी का उसको अपार्टमेंट नहीं चाहिए, किचन नहीं चाहिए।
हम लोग को एक किचन का इंटीरियर में हमको 10 लाख 20 लाख 50 लाख कर देते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ईटिंग के लिए। ईटिंग के लिए ही वो किचन, उसके पीछे 50 लाख खर्चा कर दिए, बट ईटिंग में तो फिर भी हमको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उसको बगैर कुछ किए, अच्छा तेल कम हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, कुछ भी हो गया तो हमको खाने में प्रॉब्लम है, बट उसको ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। सो दे आर हैप्पी एज वेल इन ईटिंग। सिमिलरली स्लीपिंग, हमको कितना ब्रांडेड, कौन सा क्वालिटी का, हाई डेंसिटी का फोम का गद्दा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बावजूद भी एसी चाहिए, या हीटर चाहिए, रूम हीटर चाहिए, उसके बावजूद भी हमको प्रॉपर स्लीपिंग नहीं मिल रहा है। और उनको नेचर में ही उनको प्रॉपर स्लीपिंग, हमको स्लीपिंग पिल्स चाहिए, उनको नहीं चाहिए। सिमिलरली मेटिंग, तो दे हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इवन इन मेटिंग एज वेल। वी टॉक अबाउट डिफेंडिंग, सेल्फ डिफेंस, तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग को कितना तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है, स्टिल वी फेल टू सेल्फ डिफेंस। एनिमल्स आर बेटर डिफेंडिंग देन अस इन अ सेंस। जब यहाँ पे उड़ीसा में एक बहुत जो आइला ने कौन सा तूफान आया था उड़ीसा में, तो इट वाज रिपोर्टेडली जितने एनिमल्स थे वो तूफान आने के पहले ही वहां से दूर चले गए, उनको पता चल गया, उनके पास मैसेज चला गया। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट, जो भी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये है, उसके बावजूद भी हम लोग वी कुड नॉट टेक प्रॉपर प्रिएम्प्टिव एक्शन। So all these activities, an animal is also doing, a man with a human being is also doing. We both are doing the same activities, and they are doing better than us. If that be so, then if we are only busy in activities centered around eating, mating, sleeping, and defending, then we are not superior to animals. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। Are we really superior animals, or are we superior to animals? It seems अगर इस लॉजिक से जाएं तो we are only sophisticated animals. Why we are saying we are only sophisticated animals? तो देखिए, हम लोग एक रोड पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जब गाड़ी लेके आप निकलेंगे, when you are driving से, तो do you follow the signals or not? Even if when you are walking, are you following the signals or not? कि कहीं पे भी चले जाएंगे, बट एक डॉग अगर रोड क्रॉस करना है तो डज ही फॉलो द सिग्नल, कि रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है? वो तो अपना मौका देख के निकल जाता है, लेकिन हम तो रुक जाते हैं कि नहीं अभी तो सिग्नल रेड है तो नहीं चलना है, ग्रीन होगा तभी जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर एक्चुअली सुपीरियर देन देम, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर इंटेलिजेंस लेवल इज above them, above animals, no doubt about it. But are we using our intelligence to that extent, at that desired level, at a superior level? Are we really doing that? ये भागवतम जब आप बात करोगे, अगर आप भागवतम सुनोगे, हम लोग क्वाइट ऑफन हम लोग भागवतम सुनते हैं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि वहां पे भागवतम हो रहा है, यहाँ पे भागवतम हो रहा है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर एज ऑफ नाउ? 22, मतलब 17 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। तो एनी वन ऑफ यू, हैव यू एवर हर्ड भागवतम? भागवतम क्या है, कभी सुने आप या पढ़े हैं, या भागवतम के बारे में कोई आइडिया है? एनी वन? अविनाश कोठारी रेज्ड हैंड। So, can we allow anyone to unmute himself and speak? Admin कौन है? I don't know. I cannot, because I am not getting that access, so I cannot allow. But if someone from the admin side can allow the audience to unmute himself and speak, probably that would be better. मनीष जी कोई है क्या एडमिन साइड से? मनीष जी आप खुद म्यूट पे हैं। नहीं हम देख रहे हैं। हाँ, एक इसका सेकंड मतलब आपके पास भी कर होगा, पा रहे हैं क्या वो भी देख। तो इसका मतलब कंट्रोल्स आपके पास भी नहीं होगा ना? नहीं मेरे हिसाब से वो राशि के पास ही है सारा कंट्रोल। हाँ, तो वो लोग तो इसका मतलब ऑन करके बस चला गया होगा। जी सर बोलिए। हाँ हाँ, ये ऑडियंस को हम लोग अलाउ कर सकते हैं क्या कि वो लोग अनम्यूट करके बोल सके? और मतलब आप, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, बट हाँ उनके पास कंट्रोल नहीं। आई कैन आस्क देम टू। हाँ हाँ, नहीं जैसे कोई भी ऑडियंस किसी को कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करेगा और बोलेगा।
मेरे को उनको परमिशन देना पड़ेगा, इंडिविजुअली परमिशन देना पड़ेगा, मैं एक साथ अच्छा, सबको नहीं दे सकती। हाँ तो अगर इंडिविजुअली देना पड़ेगा तो दे दीजिए ना। अभी कोई अविनाश कोठारी ने हैंड रेज कर रखा है। श्योर श्योर। कोई बोलेगा कि ठीक है लेटेस्ट, नहीं लेकिन ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं हो रहा सब, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। तो देखिए भागवतम हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि भागवतम हो रहा है, मेरा फ्रेंड भागवतम करवा रहा है या मेरे फ्रेंड सो रिलेटिव भागवतम करवा रहे हैं। और भागवतम भी कोई यहाँ पे कोई बैंक्वेट में करवा रहे हैं, कोई किसी अपने घर में करवा रहे हैं, कोई बनारस में जाके करवा रहे हैं, कोई अयोध्या में जाके करवा रहे हैं, कोई कहीं वृंदावन में करवा रहे हैं, पुरी में करवा रहे हैं, अलग अलग जगह पे। तो हम लोग भागवतम में जाके क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, या कितना टाइम जाके सुनते हैं, कितना टाइम होता है भागवतम। तो यूजुअली आप देखोगे 7 या 8 दिन भागवतम हो रहा है, और डेली 3 घंटा 4 घंटा भागवतम हो रहा है। और हम लोग भागवतम सुनने जाते हैं, उसका इनविटेशन आता है, बार बार इनविटेशन आता है, सेव द डेट, ये वो, आज कृष्ण जन्म है, आज सुदामा वो है, मिलान मिलन है, और आज वो रुक्मणी विवाह है, और ऐसा करके एक एक वो इंसिडेंस आता है। और हम लोग जाते हैं वहां पे, बोलेंगे कि अरे वो आज उसमें बधाई बांटा, उसने उसने आज ये किया, आज वो किया। तो मोरलेस एक एक्टिविटी, और उसके अंदर में हम लोग जाके कुछ परफॉर्मेंस और वो सब में तो ध्यान रहता है। 8 दिन तो नहीं जा रहे हैं यूजुअली कोई, मतलब कुछ लोग ऑब्वियसली थोड़े सीरियस श्रोता होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मान लीजिए 10-20 लोग या 30 लोग घर वाले जो है या एकदम क्लोज रिलेटिव, तो वो भी, मैंने तो, मेरा एक्सपीरियंस तो काफी डिफरेंट है कि इवन वो भी थोड़ा देर बैठते हैं, फिर उठ के इधर उधर की बातें चलती है। मतलब भागवतम कितना सीरियसली कौन सुन रहा है, वो बहुत गिने चुने ही लोग होंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग जाके सुन रहे, यानी कि वहां पे थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा अरेंजमेंट देख रहे हैं, कौन करवा रहा है, कितना अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट, उसमें हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। बट अगर आप भागवतम में जाओगे, एक्चुअली भागवतम के अंदर जाओगे कि भागवतम में क्या है, तो देन यू विल फाइंड, स्टार्टिंग में, भागवतम के स्टार्टिंग में, ये यहीं से ये कथा शुरू होती है एक्चुअली। ये एक टॉपिक आता है यहाँ पे कि गृह मेधी वर्सेस गृहस्थ। तो गृहस्थ क्या है और गृह मेधी क्या है, तो वहां पे ये बात आती है कि हम लोग मोस्ट ऑफ अस नॉर्मली आर गृह मेधी, नॉट गृहस्थ। भागवतम की कथा जो है, सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज को। तो वो जो सुनाते हैं वहां पे ये स्टार्टिंग में ये सवाल आता है कि आप एक गृह मेधी हैं या गृहस्थ हैं। तो हम लोग अगर यही 4 एक्टिविटीज करते रहेंगे जो एनिमल्स कर रहे हैं, तो देन वी आर ओनली गृह मेधी, नॉट गृहस्थ। लेकिन गृहस्थ बनने के लिए हमको अपना कॉन्शियसनेस को अप्लाई करना पड़ेगा, हमको अपना बुद्धि को अप्लाई करना पड़ेगा, हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अगर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग अपने आप को पहले डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि एनिमल से हम कैसे डिफ्रेंशिएट, हाउ आर माई सुपीरियर। तो सुपीरियरिटी क्या है हमारी, कहाँ पे हम सुपीरियर हो सकते हैं, तब उसका आंसर मिलेगा आपको कि वी कैन आंसर some questions which an animal cannot। तो वहां पे ये ब्रह्म जिज्ञासा की बात आती है कि ब्रह्म जिज्ञासा जो एक एनिमल नहीं कर सकता है, वो नॉर्मल, ये जो चीज हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन हम भी करते हैं, एनिमल भी करता है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर की जो बात है, उसके पीछे की जो बात है, वो हम लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि एनिमल नहीं कर सकता है। कि वो क्वेश्चन क्या है, ये मेरा स्क्रीन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो वो क्वेश्चन है, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये क्वेश्चन करने हम लोग बाकी चारों तरफ, अपने चारों तरफ के बारे में सब क्वेश्चन करते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चन किए होंगे अभी तक। मेरा 55 ईयर्स हो गया तो ऑब्वियसली 55,000 क्वेश्चन कर चुके होंगे मिनिमम। लेकिन ये क्वेश्चन शायद कभी नहीं कि मैं हूं कौन। देखिए ये क्वेश्चन क्यों रिलेवेंट है, वाई इट इज रिलेवेंट, जिसके बारे में आज का जो टॉपिक भी यहीं पे रखा है हम लोगों ने, कि वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी। हम लोग का जिसका जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। कैसे, हाउ डू यू फील इफ अ सर्वेंट सिट्स ऑन हिज मास्टर सीट। घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, और वो अगर मास्टर के बेड पे या चेयर पे आके बैठ गया, या ऑफिस में जो एमडी है उसके चेयर पे अगर एक क्लर्क आके बैठ गया, तो कैसा लगेगा।
या एक कारपेंटर को अगर आप देखें कि मेडिकल सर्जरी रूम में जाके वो बैठा हुआ है, या डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम में उसके चेयर पे जाके बैठा हुआ है, तो कैसा लगेगा वो? ऑब्वियसली ऑड लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज नॉट फिट फॉर दैट। इसका मतलब उसका आइडेंटिटी अगर वो क्लर्क का है तो क्लर्क वाले चेयर पे ही ठीक लगेगा। अगर ये डोमेस्टिक हेल्प है तो वो डोमेस्टिक हेल्प है तो वो अपना घर का या तो पोछा लगा रहा होगा या झाड़ू लगाएगा या ऐसा कुछ करेगा इस तरह का। मतलब हमारा जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, तो एक कारपेंटर सर्जरी रूम में नहीं जाएगा और एक सर्जन कारपेंटरी का काम लेके नहीं बैठेगा। घर पे अपना घर पे तो थोड़ा बहुत कभी फिर भी कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन अदरवाइज तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम तो डॉक्टर के चैम्बर में जाके नहीं बैठेंगे, या एक इंजीनियर का साइट पे जाके इंजीनियरिंग का वो तो नहीं करेंगे। तो दैट इज हाउ इट गोज। तो इसका मतलब हमारा जो आइडेंटिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो वोकेशन है, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं, वोकेशन बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर ओन आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या है, तो क्वेश्चन आता है कि आर यू मिस्टर बोस, तो हम अग्रवाल है, कोई बरेलिया है, कोई संथालिया है, आर यू ए मैन और ए वुमन। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। मैं मिस्टर अग्रवाल हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मेल हूँ, और क्या बोलेंगे हम लोग, मैं हिंदू हूँ, मैं रिच हूँ। ऐसा हम लोग ये सब बोलते हैं अपने बारे में। अब किसी को भी जब अपना परिचय पूछते हैं कि आप कौन है, तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा नाम बोलते हैं कि मैं इस जगह से हूँ। अगर दिल्ली बॉम्बे मद्रास में जाके कोई बात करें, कोई गैदरिंग में बात करें, तो बोले मैं कलकत्ता से हूँ। तो इस तरह का हमारा आइडेंटिटी होता है सब। बट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एक बॉडी हूँ, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। या किसी को पूछते भी नहीं है कि आर योर बॉडी, नहीं पूछते। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम लोग ये बॉडी है? जो हम दिख रहे हैं वही है? क्योंकि ये जो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे इस बॉडी से रिलेटेड है कि मैं अग्रवाल हूँ। जब तक मैं इस बॉडी में हूँ, मैं अग्रवाल हूँ। इस बॉडी में नहीं रहूंगा तो अग्रवाल नहीं रहूंगा। मैं इंडियन हूँ जब तक इस बॉडी में हूँ। मैं एक मैन हूँ, मतलब मेल हूँ या फीमेल हूँ, जब तक इस बॉडी में हूँ। मैं रिच हूँ या पुअर हूँ, जब तक इस बॉडी में हूँ। ये सारा देखिए, ऑल आर रिलेटेड टू द बॉडी, द फिजिकल बॉडी विच वी कैन सी। नाउ सी, वी कैनॉट सी इवन माइंड इंटेलिजेंस। हमारा माइंड हम देख सकते हैं, हमारा माइंड कहाँ है, कैसा है, नहीं देख सकते। इंटेलिजेंस नहीं देख सकते। व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस सीइंग द सोल, मतलब हमारे अंदर में जो एक आत्मा है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जैसे माइंड को नहीं देख सकते, इंटेलिजेंस को नहीं देख सकते, वैसे आत्मा को भी नहीं देख सकते। तो देखिए, हमारा जो बॉडी है, शास्त्र में बोला हुआ, स्क्रिप्चर्स में बोला हुआ, हमारा बॉडी का दो लेयर, लार्जली दो लेयर है, ऑल्दो उसके और भी कई डिविजन्स हैं। तो मेनली बोलते हैं कि एक हमारा ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर को बोलते हैं, और सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। तो ग्रॉस बॉडी जो है, दैट इज मेड अप ऑफ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हम लोग बोलते हैं ना, पंचभूत से बना हुआ है ये जो शरीर, जो हम लोग व्हाट वी कैन सी। एंड इसके अंदर एक सटल बॉडी है जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। मन, बुद्धि, अहंकार, उससे बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब एक शरीर छोड़ता है, फिर वो दूसरे शरीर में जाता है। तो वो जो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसको कैरी करता है, यानी कि वो उसके साथ चलता है। बट फाइनली जब अगर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा मुक्ति मिल गया, मतलब लिबरेशन मिल गया, लिबरेटेड हो गया, तो जब लिबरेशन होता है, तो वो मन, बुद्धि, अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसको भी छोड़ के निकल जाता है। तो वो एकदम प्योर सोल निकल के चला जाता है। तो दैट इज लिबरेशन। लेकिन जब तक लिबरेशन नहीं हो रहा है, एक बॉडी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, उसमें हम स्पेसिस भी चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं योनि भी चेंज हो सकता है। तो अलग अलग योनि में जाते हैं, तो वो मन, बुद्धि, अहंकार वाला जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो उसको कैरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, वी कैन कंक्लूड दैट आवर विजन इज नॉट परफेक्ट। वी डू नॉट हैव a perfect vision, we have an imperfect vision, because we cannot see mind, we cannot see intelligence, we cannot see the soul. बट जो नहीं देख रहे, इसका मतलब क्या वो नहीं है। हम लोग तो रोज बोलते हैं मेरा मन में ऐसा बोल रहा है, मेरा मन में ऐसा बोल रहा है, तुम्हारा मन क्या बोलता है, हम लोग रोज बात करते हैं। मेरी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो तो सुपर इंटेलिजेंट है। देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वी नो दैट इट इज देयर। तो इफ इट इज देयर, तो सिमिलरली सोल भी है, बट वी कैनॉट सी इट। तो हमारा विजन परफेक्ट नहीं है, वी हैव एन इम्परफेक्ट विजन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। When a person dies, एक ओल्ड मैन या वुमन
घर में फैमिली में कई बार कभी होता है कि अरे लास्ट ब्रेथ, लास्ट मोमेंट चल रहे होंगे, आखिरी सांस ले रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनका तो बस अब कुछ पल, कुछ मिनट या कुछ घंटे बच गए। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, इसी तरह का एक सिनारियो होता है। अच्छा, द स्लाइड इज विजिबल ना, या स्लाइड शो में डाल देंगे इसको? दिख रहा है अरुण जी, दिख रहा है एकदम। हाँ हाँ, तो इसी द सीनैरियो इज समथिंग लाइक दिस, कि वो आखिरी मोमेंट में जब कोई आखिरी सांस ले रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बोला भाई अरे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, लड़का लड़की, दो पोता पोती, दोता बेटी, जो भी है, मतलब या भाई बहन, जो एकदम क्लोज रिलेटिव से बोले सबको दे आओ, बोले आप मिल लो, आप मिल लो, उनको भी बोलते हैं हाँ आप कुछ बोलना है तो बोलिए, इस तरह का एक सिनेरियो होता है। और उसके थोड़ी देर बाद अचानक से हम लोग बोलते हैं, अरे डॉक्टर भी अचानक से बोलते हैं, अरे साहब ये तो चले गए। और जैसे ही ये तो चले गए, और हम लोग फिर नेचुरली मतलब वो एक सॉरोफुल, एक गमगीन माहौल बन जाता है, तो लोग वो तो चले गए। now you see, वो कैसे चले गए? उनके जो, हम लोग उनका जो भी देख सकते थे, क्या देख सकते थे हम? उनके हाथ देख सकते हैं, पाँव देख सकते हैं, माथा देख सकते हैं, मुंह देख सकते हैं, वो सब दिख रहा है एज इट इज है। वो बॉडी उस बेड के ऊपर में वही लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं वो चले गए। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इसका क्या मतलब होता है? तो कौन चला गया? जब वो खुद है यहाँ पे, तो चला कौन गया फिर? अब तो हम लोग नहीं बोलते कि वो है, बोलते रहे फॉर एग्जाम्पल कि दादाजी चले गए। अब दादाजी चले गए, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि ये तो उनका शरीर रह गया। फिर उनको तुरंत नीचे उतारते हैं, फिर उनको जो भी अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट के साथ में फिर उनको लेके जाते हैं, फिर जो भी उनका अंत्येष्टि क्रिया होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी नो, वी एडमिट, वी अंडरस्टैंड दैट कोई था जो चला गया, लेकिन ये शरीर को छोड़ के चला गया। इसका मतलब इतने दिनों तक वो इस शरीर में थे। कोई ऐसा है जो इस शरीर में इतने दिनों से था, पिछले 60 साल, 70 साल या 80 साल तक इसमें था, और अब वो चला गया। तो इसका मतलब वो, ये शरीर तो नहीं है। दिस शरीर, ये जो दिस बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल बीइंग। तो ये हम लोग जानते हैं, समझते हैं, एडमिट करते हैं, सब ये करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू परसीव, कि मैं, इसका मतलब ये शरीर तो नहीं हूँ, मैं अरुण अग्रवाल हूँ। मतलब ये हाथ नहीं है अरुण अग्रवाल, ये पाँव नहीं है अरुण अग्रवाल, लेकिन ये अरुण अग्रवाल नाम इसका दिया गया जब तक ये रहेगा। ये जिस दिन नहीं रहेगा तो अरुण अग्रवाल नहीं रहेगा। तो यानी कि मैं एक कोई दूसरा बीइंग, देयर इज सम डिफरेंट बीइंग विच इज टेम्पोरली लिविंग इन दिस बॉडी, द बॉडी मेड अप ऑफ 2 legs, 2 hands, हेड, ये वो सब। तो ये हमारा एक्चुअली, इसका मतलब आइडेंटिटी इस बॉडी से नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी जितना आइडेंटिफिकेशन देते हैं, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विथ ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम, होमलैंड, क्वालिफिकेशन, ये वो जितना भी है हमारा, रिलीजियन, मेल फीमेल, रिच पुअर, ये सारा जो है, ये सब हम लोग क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री, ये सब से परिचय करते हैं, लेकिन वो हमारा एक्चुअल परिचय है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वो हमारा परिचय नहीं है, तो फिर क्या है? एक री इनकारनेशन का स्टोरी है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या है वहां पे। वो कहाँ गया? इसका डिटेल्स नहीं। देयर वाज, ये इसका स्टोरी है मीनू का। मीनू माने मीनू या माना करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। मे बी 50-60 साल पहले का है। समवेयर इन एमपी मोस्ट प्रोबब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाटपाड़ा बोल के कोई जगह, वहाँ का स्टोरी है। क्या है कि in this picture, if you can see, there is one small girl. So this girl was 5 years old, and all of a sudden this girl started talking about कि यार ये मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा ये है, वो सब, वो लोग कहाँ है, ये कहाँ है, इस तरह का समथिंग लाइक दैट शी वाज टॉकिंग। तो घर वाले सब परेशान कि भी क्या बात है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये उल्टा पुल्टा 5 साल की बच्ची, और वो बोल रही है मेरे सास ससुर बेटा बेटी हस्बैंड, ये सब बात कर रही है। फिर धीरे धीरे वो कुछ और बात डिटेल्स बोलने लग गई, फिर कोई गांव का नाम बोलने लगी और ये करने लगी। तो घर वाले फिर जाके ट्रेस बैक करने की कोशिश की कि भी क्या मामला है।
तो कहीं पहुंचे वो, जहाँ पे जैसे जैसे डायरेक्शन दी तो पता चला कि ऐसे से वो इतने साल पहले एक लेडी एक्सपायर कर गई थी, या उनकी कोई बच्ची शायद एक्सपायर कर गई थी, तो ऐसा कुछ था। बट तो उसका वो गम में वो बहुत परेशान थी, एंड देन शी लेफ्ट हर बॉडी, और उसके बाद में तो समझ में आया कि ये प्रीवियस लाइफ में चली गई है, मतलब प्रीवियस लाइफ का सब कुछ वो उसको याद रह गया। और ऐसा कई स्टोरी आता है, ये तो जस्ट एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल लिया गया, ऐसा कई बार हम लोग सुनते हैं इस तरह का। तो दिस इज अबाउट री इनकारनेशन, कि कई बार री इनकारनेशन का स्टोरी इस तरह का मिलता है। तो दैट मीन्स व्हाट, बॉडी तो ये डिफरेंट है, इसका मतलब कोई देयर वाज वन बीइंग जो पहले उस बॉडी में था, अभी इस बॉडी में आ गया है। तो दिस सिग्निफाइज, मतलब इस तरह का प्रूफ मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। आई एम द सोल, सोल जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, अनु आत्मा बोलते हैं, व्यक्ति आत्मा बोलते हैं, इंडिविजुअल सोल। आई एम द सोल एंड नॉट द बॉडी। और ये जो सोल है हमारे बॉडी के अंदर रहता है ये सोल, और ये सोल का साइज जो है भागवतम में ही बताया हुआ है कि इट इज 1/1000, 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ ए हेयर। एक बाल का जो अग्रभाग है, टिप है, उसका 10,000 पार्ट जो है उतना वो साइज है हेयर का। तो यू नो कि हम लोग अगर कई बार देखते होंगे, नॉर्मली मान लीजिए घर में झाड़ू लग रहा है, आपको लग रहा है झाड़ू लग रहा है, फिर अचानक से अगर वही अगर सनरे आएगा तब आपको दिखेगा कितना धूल उड़ रहा है, यानी कि धूल के कितने कण आपको दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब ब्लैक नेकेड आई से हमको नहीं दिखता है, जितना लाइट है उसमें नहीं दिख रहा है, अगर सन का रे आएगा तब दिख रहा है। उसी तरह आप अगर अगर वो माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो और एकदम छोटा छोटा वो दिखेगा। तो इसका मतलब बहुत छोटा छोटा साइज का बीन्स है जो हमको नहीं दिख रहा है नेकेड आई से। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट आई चाहिए, बड़ा करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए। तो वो सोल इतना छोटा है कि वैसा माइक्रोस्कोप भी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम देख सकें, बट है, इट इज देयर, जिसके लिए हम लोग ये बैकग्राउंड का बात किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि वी आर नॉट द बॉडी बट द सोल। आई एम नॉट द बॉडी बट द सोल। बॉडी हमारा जो दिख रहा है ये मेरा रियल आइडेंटिटी नहीं है, मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा जो ब्रह्म जिज्ञासा की हम लोग बात कर रहे थे, ब्रह्म जिज्ञासा का अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूँ, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम दी एनिमल, तो उसके आंसर में मिलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और ये जो जिज्ञासा, ये प्रश्न करना, टू रेज दिस क्वेश्चन एंड टू फाइंड इट्स आंसर एंड टू रीच एट दिस कंक्लूजन, दिस इज नॉट a cup of tea for an animal. That is what differentiates us from the animal. तो भागवतम में बोला हुआ है कि अगर हम इस चीज को अगर समझते हैं और अकॉर्डिंगली अगर हम एक्ट करते हैं, देन वी आर गृहस्थ एंड नॉट गृह में भी। अदरवाइज हम लोग एक जानवर की तरह, एनिमल्स की तरह ही लाइफ जीते रहेंगे, दैट इज गृह में भी, नॉट गृहस्थ। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग को जानने का है, समझने का है, जो हम लोग अक्सर हम लोग इसको मिस करते हैं और हम लोग वही लाइफ जीते रहते हैं। So that was the first part of the discussion. The second part is about the super soul. So far we talked about the soul, हम लोग soul हैं, and then we talk about super soul. What is super soul? यानी Lord, भगवान, भगवान कौन है, super soul कौन है? तो वो सब आत्माओं से ऊपर है, परमात्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब परमात्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सवाल आता है कि who is controlling everything? क्या चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? Who is the creator of everything? Everything means everything. हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच पा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, about everything. Who has created all this? Who is controlling all this? हम लोग एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इज इट ऑल हैपनिंग बाय चांस? व्हाट, किस चीज के बारे में हम बात करें? व्हाट इज हैपनिंग बाय चांस? मैंने ये तो क्वेश्चन है, बट किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि ये मान लीजिए एक पिक्चर आता है, ये पहले ये जो पिक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा पिक्चर है? वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ अस नो। ये क्या है बताइए? तो अगेन इसमें तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद ऑडियंस का बोलने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट ये एक पेंटिंग है। वी नो दैट ये पेंटिंग मोनालिसा ने बनाया है। मोनालिसा पेंटिंग का नाम है, इसका आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग बनाया हुआ है, मोनालिसा पेंटिंग का नाम है।
तो ये हम लोग जानते हैं सर 1 मिनट बोल रहा है। हाँ। अब ऑडियंस को भी बोल दिया गया, ऑडियंस भी बोल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं जब भी बीच में ओके। करना चाहे तो। हाँ तो कोई, हाँ तो एनीवन, अगर मैं बीच बीच में जब भी मैं बोल रहा हूँ तो कोई भी उसको आंसर या रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो प्लीज। प्लीज एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड। हाँ करेक्ट, हाँ। तो मोनालिसा का ये पेंटिंग है कि भाई इसका पेंटर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। अब ये कौन सा पेंटिंग है, इसका पेंटर कौन है? ये एक सवाल है कि हम लोग देखते हैं झरना, पहाड़, नदी, कौन है इसका पेंटर? ये कौन बनाया है ये सब? ये देखिए जो हम लोग इससे देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देखते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत दिखता है हम लोग को, जो दिखता है वो कुछ भी नहीं है इससे जो दिखता है उससे, मैंने इनॉर्मस साइज है। इतने इतने प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे कि भी इतने स्टार्स ऐसे ऐसे हैं जिसका मैंने, कुछ स्टार्स की लाइट तो अभी यहाँ पे पहुंच गई, बट देयर आर सो मेनी स्टार्स उसका लाइट आज तक भी धरती पर नहीं पहुंचा है, यानी कि वी कैनॉट स्टिल सी बट इट इज देयर, जियोग्राफी बोल रहे हैं। तो ये जो इतने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सबको कौन बनाया है? अभी ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ से हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं। इतने सालों की कोशिश के बाद अभी हम मून पे पहुंच गए, अभी हम मार्स में भी शायद पहुंच गए, वी आर नॉट श्योर। 40 साल 50 साल पहले भी बोला गया कि मून पे जाके आ गए। कौन कौन गया था? यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रांग और एक और बंदा था, उसमें से 3 में से एक उसमें था क्राफ्ट में, और 2 शायद नीचे। उसके बाद सवाल अचानक से आता है 25 साल 30 साल बाद, कह रहे नहीं नहीं वो लोग तो मून में नहीं गए थे, लगता कहीं और चले गए। वी आर नॉट श्योर। और मून कहाँ है? यहाँ थोड़ा सा पास में है मून और मार्स। इतना बड़ा साइज है इसका गैलेक्सी का, उसमें ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा कण है। तो इसका कंट्रोल कहाँ है, किसके पास है? वो कंट्रोल रूम कहाँ है? ये सवाल है। ये जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इसका कंट्रोल तो हम लोग रख पा रहे हैं कंट्रोल रूम से, लेकिन ये जो इतना बड़ा यूनिवर्सल सिस्टम है, इसका कंट्रोल किसके पास? तो ये जो सबके कंट्रोलर हैं, ये सबका जो, इसके जो क्रिएटर हैं, ही इज द सुपर सोल, ही इज द गॉड, ही इज द लॉर्ड, जिसने इसको बनाया। सवाल आता है बार बार कि क्या ये सब बाई चांस हो रहा है? कई बार साइंटिस्ट तो बोलते हैं, कई बार ये सब तो कोई क्रिएटर नहीं है इसका, और इसका कोई कंट्रोलर भी नहीं है, ये सब बाई चांस हो रहा है। बट क्या लगता है कि बाई चांस ही ये सब हो रहा है? सपोज ये तो छोटा सा सोलर सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो सोलर सिस्टम में सन है बीच में, और उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन 9 या 10 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग अभी तक जानते हैं। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, वॉल्कन, 10 तक हम लोग जान पाए। अब ये 10 का ही केवल बात करें तो कौन सा प्लैनेट किस स्पीड में चलेगा, कौन सा उसका ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में वो रहेगा। अगर उसका स्पीड थोड़ा कम बेसी हो गया तो क्या होगा? ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, एक दूसरे से क्लैश हो जाएगा। हो रहा है क्या? इतने सालों से तो नहीं हुआ कुछ। तो कहीं कुछ, ये सारा सारा अपने अपने ऑर्बिट में है, अपने अपने स्पीड में चल रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कैसे चल रहा है? इज इट ऑल हैपनिंग एक्चुअली बाय ए चांस? इसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? ये बोला स्लाइड नहीं था, नहीं डालते। तो मैं बीच में पहले इसके न्यूटन के पहले मैं बताता हूँ। देयर इज अ बुक, कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, वो स्लाइड शायद मिस हो गया है। कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, छोटा सा बुक है। इट इज रिटन बाय 2 साइंटिस्ट, नंबर 1 डॉक्टर टी.डी. सिंह एंड नंबर 2 रिचर्ड एल थॉमसन। हु आर दे? डॉक्टर टी.डी. सिंह जो है, he has done his PhD in physical organic chemistry from University of California. Who is Richard Thompson? He has done his PhD in mathematics from Cornell University. He has done PhD in quantum physics from New York, University of New York, State University of New York. तो ये इस तरह के लोग हैं। इन दोनों ने लिखा है वो कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। उसमें उन्होंने, ये दोनों ही आपको बता दें, ये इस्कॉन के डिसाइपल्स हैं। ये दोनों का मैंने आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उनका परिचय है वो बताया, उनका आइडेंटिफिकेशन। बट एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर
इनिशिएटेड डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो मैंने बताया, उनके शिष्य हैं दोनों। इन दोनों ने ये बुक लिखी, छोटी सी बुक है, बट उन्होंने उसमें क्या लिखा है, उसमें एक्सप्लेन किया है कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। ये जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, इसके बारे में मिसिंग लिंक, मतलब एक लिंक है जो मिसिंग है, यानी कि साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश द लिंक, दे आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश विथ अथॉरिटी व्हाट इज द लॉ ऑफ द नेचर। नेचर का लॉ क्या है, नेचर किस तरीके से चल रहा है, ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये क्या बाई चांस हो रहा है, ये क्या हो सकता है ऐसा बाई चांस, इसको उन्होंने पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है, फिजिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, करके पूरा रिसर्च किया, करके उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, बाई चांस नहीं हो सकता है। तो बाई चांस वाला जितना भी थ्योरी है, जो जो साइंटिस्ट का, उन लोगों को उस थ्योरी को उन्होंने एनालाइज किया, करके उन्होंने बोला कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल बाई चांस वाला थ्योरी सही नहीं है। ये इसका बैकग्राउंड है। न्यूटन देखिए क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट हम लोग सब जानते हैं न्यूटन, दिस मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. He is not saying कि कौन, but कोई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं, देखिए, there is a perfect brain behind all the natural physical laws. एक साइंटिस्ट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो अपने लास्ट लाइफ में जाके बोल रहे हैं कि सडनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड that there can be many different, absolutely different types of laws of nature which are not studied so far, and शायद मेरे को पूरा अपना स्टडी और रिसर्च को पूरा नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं। लॉर्ड केल्विन, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो ये साइंटिस्ट लोगों का वर्जन से, मतलब कंक्लूजन से। अब देखिए भगवत गीता में चैप्टर 7 वर्स नंबर 7.7 चैप्टर 7वां अध्याय 7वां श्लोक, उसमें है मत्त पर तरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, मत्त पर तरम नान्यत्, नो वन इज सुपीरियर टू मी ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी as pearls are strung on a necklace. This is Bhagavad Gita 7.7. No one is superior to me, O Arjuna. Everything rests upon me as pearls are strung on a necklace. ये जो necklace का picture हम लोग देख पा रहे हैं, this necklace is based on what? ये necklace किसके ऊपर टिका हुआ है? इसके अंदर एक धागा है, उस धागे के ऊपर ये पूरी मोती एक मोती पिरोए में है उस धागे में। तो हम लोग वो धागा नहीं देख पा रहे, वी कैन नॉट सी दैट धागा, लेकिन हम लोग ये मोती देख रहे हैं, और मोती देख रहे हैं, तो डू यू बिलीव कि इसके अंदर में धागा होगा? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इसके अंदर धागा होगा, या ऐसे ही ये मोती सब एक दूसरे से जुड़े हुए? तो वी कैन से विथ सर्टेनिटी कि यहाँ धागा तो है बॉस, बिना धागा के ये मोती सब कैसे टिकेंगे? तो अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। हम जो देख रहे हैं उसके पीछे कुछ अनसीन है, बट इट इज प्रूवन। हम लोग, आप सिंपली, हम यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए खिड़की से अगर बाहर देखेंगे तो सन रे दिखता है, धूप दिख रहा है, तो कैन यू सी कि भी सूरज है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताइए? दिख रहा है क्या? सूरज से जाके बाहर नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से रश्मि दिख रहा है सूरज का, सन रे देख पा रहे हैं, तो वी आर श्योर कि हाँ सन तो है, बिकॉज सन रे कम्स फ्रॉम सन, तो इट इज इंडिफरेंट फ्रॉम सन। तो अनसीन कैन बी प्रूवन फ्रॉम द सीन। इसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में ही पैदा हुए थे 500 वर्ष पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, वो बोल के गए थे, इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत भेदाभेद, भेद अभेद, अचिंत मतलब चिंता शक्ति से परे, जो हम लोग चिंता नहीं कर पाते, अचिंत भेदाभेद, भेद अभेद तत्व क्या है? भगवान। भगवान यानी शक्तिमान। हम लोग भगवान की शक्ति को देख सकते हैं। भगवत गीता जब आप पढ़ोगे, भगवत गीता में भगवान ने अपना परिचय दिया है, गॉड हैज रिवील्ड हिमसेल्फ। कृष्णा के रूप में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान अपने बारे में बताते हैं, वो अपना परिचय देते हैं, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ,
व्हाट आर माई एक्टिविटीज, हाउ डू यू नो मी, हाउ कैन यू सी मी, सब बताते हैं भगवान वहां पे। तो वहां पे भगवान 7.7 में ये बता रहे हैं, ये भगवान का ये है वर्जन। मत्त परतरम, मेरे से ऊपर कोई नहीं है अर्जुन, मेरे से सुपीरियर कोई नहीं, नो वन इज सुपीरियर टू मी, आई एम द क्रिएटर, भगवान बोल रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाय हुआ। मतलब जिस तरह से मोती धागे में पिरोए हुए होते हैं, उस तरह ये पूरा सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, ये पूरा गैलेक्सी सिस्टम, ये पूरा मेरे ऊपर में बेस करके है। यानी कि इन सबके बेस में मैं हूँ। आई एम द अनसीन एंड यू कैन सी द प्लैनेट्स एंड स्टार्स, सम ऑफ देम, बट द अनसीन, इसके पीछे मैं हूँ, जिसके ऊपर पूरा सारा बेस करके है ये पूरा सिस्टम। ये भगवान का यहाँ पे तो शास्त्र में ये बोला हुआ है कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। गॉड हैज नो बिगिनिंग, पर ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग माने अनादि आदि, माने अनादि के भी आदि, और सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण मैं हूँ, भगवान बोल रहे, भगवान आप हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जितने भी कुछ जो कुछ भी हो रहा है उन सबके पीछे जो भी कारण है, उन सबके पीछे जाओगे तो अल्टीमेटली द रूट कॉज इज लॉर्ड हिमसेल्फ। 10वां चैप्टर में भगवत गीता में 10.8 में भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समने। तो अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, भगवान बोल रहे हैं वहां पे भगवत गीता में। तो ये ही इज दैट सुपर सोल। तो ये हम लोग सुपर सोल के बारे में बात की। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान चैप्टर 15 में बोलते हैं कि मैं, मेरा जो धाम है वो गोलोक वृंदावन धाम जिसको बोलते हैं, बोले मेरा धाम उस जगह पे है जहाँ पे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, उसकी सूर्य की चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है, इसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। इससे पूरा आकाश आलोकित होता है, हजारों सूर्य के बराबर की रोशनी होती है वहां पे चिन्मय आकाश में, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, नॉट द मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऊपर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इशू आता है, ऑल्दो टाइम मेरे ख्याल से होने में आ गया, बट स्टिल मैं थोड़ा सा नेक्स्ट कोशिश करूंगा 5-7 मिनट में कंक्लूड करने का। तो एक डेस्टिनी के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। डेस्टिनी क्या होता है, व्हाट इज डेस्टिनी, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। वी गेट आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। किसी को क्या बॉडी मिलता है, किसी को क्या बॉडी मिलता है, जिसको हम लोग योनि बोलते हैं ना, स्पेसिस, एनिमल स्पीसीज में आता है, कोई मैमल स्पीसीज में आता है, कोई बर्ड्स में आता है, कोई रेप्टाइल्स में आता है। तो 84 लाख योनि हम लोग सब बोलते हैं, 84 लाख योनि, 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख योनि। तो क्या होता है 84 लाख योनि? देखिए, एक्वाटिक स्पीसीज 9 लाख होता है, 9 लाख टाइप्स ऑफ एक्वाटिक स्पीसीज। ये 9 लाख तरह के जल के जानवर होते हैं, मैंने मछली और ये सब। 4 लाख ह्यूमन बींग्स होते हैं, मैंने मनुष्य योनि में 4 लाख तरह की योनि है। एनिमल्स में 30 लाख, 30 लाख तरह की है, ये सब भागवतम का डेटा है। बर्ड्स में 10 लाख तरह के बर्ड्स होते हैं योनि, अलग अलग स्पीसीज। ब्रिक्स 20 लाख तरह के होते हैं, ट्रीज 20 लाख, इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स 11 लाख, ऐसे करके टोटल 84 लाख अलग अलग, ये जो 84 लाख योनियां है, ये इस तरह की योनियां है। तो किसी को भी कोई भी बॉडी मिल जाता है। मान लीजिए नॉर्मल कोर्स में हम लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, आपस में हम लोग जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो कोई देखने में बहुत सुंदर है, कोई एकदम, कोई बहुत गोरा है, कोई एकदम काला है। तो अलग अलग तरह के देखने में लोग हो सकते हैं। कोई बहुत रिच है, कोई एकदम पुअर है, बॉर्न रिच। कोई होता है कि बहुत बड़े घर में किसी कोई पैदा होता है, कोई फुटपाथ पे पैदा होता है, तो कोई एकदम ऐसे कंडीशन में पैदा होता है। तो ये क्यों होता है? एक जन को एजुकेशन मिलता है और वो एकदम डॉक्टर बन जाता है, उसको सारा फैसिलिटीज मिलता है, लेकिन दूसरा को नहीं, सबको तो नहीं मिलता है। तो सॉरी, इसके पहले हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो ये जो था, तो ये जो अलग अलग तरह के फेट होते हैं एक दूसरे के,
ये क्यों होता है? ये बाई बर्थ कैसे हो सकता है? दो बच्चे एक ही साथ में पैदा हो रहे हैं, एक ही टाइम पे पैदा हो रहा है, एक बच्चा एकदम रिच फैमिली में पैदा हो रहा है, एक बच्चा एकदम गरीब में फुटपाथ पे पैदा हो रहा है। तो उसने क्या गलती किया जो वो उसको ऐसा माहौल मिला? कैन एनीवन से? किसी का कोई व्यू है इसके ऊपर? देखिए, ये डेस्टिनी है, ये प्रारब्ध है। क्या है ये प्रारब्ध? ये हमारे कर्म जो है, हम लोग जैसा कर्म करते हैं उससे कर्म फल बनते हैं। हम अच्छा कर्म करते, इतना तो हम लोग सब जानते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला है, रूल है कि अच्छे कर्म करने का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब इसका बहुत वैरायटी हो सकता है, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग उस पर डिस्कशन में चले जाएं, बट इतना हम लोग सब समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इन शॉर्ट, इन समरी इतना है कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल तो हमको मिलेगा। कब मिलेगा? तीन तरह का अकाउंट चलता है शास्त्र में बोला हुआ। नंबर वन, कुछ हम अभी ऐसे कर्म कर रहे हैं उसके फल हमको इसी जन्म में मिल जाएंगे, आगे पीछे मिलेंगे। एक हो सकता है, सपोज आज अभी हम अगर आग में हाथ दे देंगे तो जलेंगे, अभी तुरंत जलेंगे। लेकिन कई बार होता है ना कि ऐसे आग में हाथ दिया, इसका तो ताप तुमको मिलेगा आज, नहीं तो 2 दिन बाद मिलेगा, 7 दिन बाद मिलेगा, 1 महीना बाद मिलेगा। भाई तुम किसके साथ पंगा लिया है? अभी देखो 10 दिन बाद वो आके हमको अचानक से थ्रेट कर रहा है, मतलब इस तरह का। तो अलग अलग टाइमिंग गैप हो सकता है, बट उसका रिस्पॉन्स मेरे को, उसको रिएक्शन मेरे को इसी लाइफ में मिल जाएगा। कुछ हमारे ऐसे कर्म होंगे उसके फल मेरे को इस जन्म में, इस लाइफ में नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट लाइफ में मिल सकता है। और नेक्स्ट किसी और, मैंने सेकेंड इमीडिएट नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकता, नहीं मिले, उसके नेक्स्ट ऐसा करके मिल सकता है। कुछ हमारे पहले के कर्म है जिसको हम लोग, जिसका फल इस लाइफ में भुगते हैं। तो एक है करेंट अकाउंट, यानी कि जिसमें इसी लाइफ का कर्म का फल इसी लाइफ में हमको भुगत रहे हैं। कुछ इस लाइफ के कर्म के फल हम आगे चल के भुगतेंगे, और कुछ पिछले जन्मों के कर्म थे उसका फल हम इस लाइफ में भुगत। तो जो पिछले कर्मों का फल इस लाइफ में अगर हमको भुगतना पड़ रहा है, दैट मे बी इन एनी फॉर्म, तो या तो मेरे को बहुत अच्छा बर्थ नहीं मिला, या हमको बहुत फैसिलिटीज नहीं मिला, या हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जो है दिस इज माई प्रारब्ध, ये हमारा प्रारब्ध है, फॉर्च्यून है। तो वो पहले जन्मों के कर्मों से बन के आया है। तो दैट इज हाउ कि भी हम लोग जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। तो ये कर्म का फल का रूल है। तो उसी से हम बनते हैं, हम लोग जो भी बनते हैं, हमारा जो भी आइडेंटिटी है वो हमारा, इसके पीछे हमारे कर्म है। अब हम लोग फाइनल इसके पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। हम लोग अगर अपने बारे में डिस्कस कर लिए कि वी आर द सोल, then we knew about the super soul, we discussed about the super soul, then we discussed about destiny. तो नाउ इसके ये सब करने के बाद में देन व्हाट इज आवर गोल, हमारी लाइफ का गोल क्या है, क्या करना चाहिए, हमको क्या पाना है और हमको क्या करना है। तो जो हम ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, नेक्स्ट होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, सेकंड क्वेश्चन होता है उसका। तीसरा क्वेश्चन होता है कि मेरे को जाना कहाँ है। हम लोग कहीं पे भी जब होटल में जाते, बाहर ट्रैवलिंग घूमने जाते हैं, तो होटल में जाने से वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और दूसरा पूछता है आपको कहाँ जाना है यहाँ से। यानी कि कहीं से तो आए हैं और यहाँ से आगे कहीं जाना है। तो ये तो ठहराव है, पड़ाव है। तो वो होटल वाला को मालूम है कि कितने दिन के लिए आए हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कहाँ से आ रहे हो, भाई फलाना जगह से आ रहे हो, और नेक्स्ट कहाँ जाओगे यहाँ से, यही तो पूछता है। तो वो हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। पहला वहां पे होता है ना कि आपका नाम दे दीजिए, नाम एड्रेस, तो वो मेरा कि मैं कौन हूँ। दूसरा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और तीसरा है मेरे को जाना कहाँ है, और चौथा है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस लाइफ में, यानी कि मेरे को क्या करना है, कर्तव्य क्या है, व्हाट आर माय ड्यूटीज। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 4 बेसिक क्वेश्चन हैं इसके। तो देखिए, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए, एक छोटा सा स्टोरी, मैं 5-7 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं क्या हम लोग? एक्चुअली ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है 5 मिनट्स। एक्सटेंड हो गया ना? हाँ, तो ठीक है, हाँ 4 से 5 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कंक्लूड करने का। तो ठीक है। देखिए, हाँ, तो एक ये पिक्चर में मैं ये दिखला रहा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है। मान लीजिए एक मेला में अगर हम जाते हैं और देखें कि छोटा सा बच्चा अकेला इधर उधर घूम रहा और रो रहा है। मेला, आजकल तो मेला का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया, गाँव में से भी अभी भी होता है। तो मेला लगा हुआ है,
इतने तरह के लोग आए हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग एक्टिविटीज चल रहा है, किधर कुछ चल रहा है, किधर कोई राइड्स है, किधर कोई खिलौना की दुकान है, कहीं को खाने पीने का है, कहीं आइसक्रीम वाला है, कहीं क्या है, और एक छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा है, रो रहा है, तो एकदम परेशान है, गर्मी से परेशान है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखेंगे कि मेरे थोड़ा देर बाद आप देखिए कि एक आदमी आया, बोला बेटा, उसको थोड़ा चुप करवाने का कोशिश किया, बोला क्या खाना है, आइसक्रीम खाओगे? उसको एक आइसक्रीम दिलाया, चला गया। तो वो बच्चा आइसक्रीम खाया, खुश हो गया, और जैसे ही आइसक्रीम खत्म हुआ फिर वो रोने लग गया। फिर थोड़ा देर बाद एक जन आया, बोला अच्छा बेटा ये खिलौना लोगे? एक खिलौने की दुकान में ले जाके उसको खिलौना दिला दिया, तो वो खिलौना देख के खुश हो गया, खेलने लग गया। थोड़ा देर बाद थोड़ा देर खेला खिलौना से, फिर रोने लग गया। तो ये तो हमारा एक डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि जैसे ही उसका एक कुछ पूरा होता है, हमारा जिद पूरा होता है, तो फिर हम रोने लग जाते हैं। इसका मतलब वो बच्चा का जो है वो कुछ मिल रहा है, थोड़ा देर उसको खुश कर रहा है, उसके बाद में फिर वो रोने लग जाता है। फिर एक आदमी आया, देखा कि अरे ये बच्चा, अरे देखा कि अरे ये तो मिस्टर बोस का बेटा है, ये तो मेरे पड़ोस में मिस्टर बोस उनका बेटा। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला, वो रो रहा है एकदम। बोले चलो चलो चलो, उसको गाड़ी में बैठाया, बैठा के घर ले आया, मिस्टर बोस के घर पहुंचा दिया। बोला अरे ये कहाँ चल, बोले वो तो मेला में खो गया। बोला अरे हम लोग जितना ढूंढ रहे थे तो मिल ही नहीं रहा था। तो देखिए, कोई उसको आइसक्रीम दिलाया, कोई उसको खिलौना दिलाया, और कोई उसको गाड़ी में बैठा के मिस्टर बोस तक पहुंचा दिया। तो कौन सा सही था? क्या करना चाहिए था हम लोग को, बताइए किसी को भी नॉर्मली, रैशनली। तो टेम्पोररी हम काम एक पर करके उसको खुश कर दें ऐसा, या हम उसको सही डेस्टिनेशन में पहुंचा दें उसको ऐसा? तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के पास जो पहुंचा दिया, यानी कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वो तो वहां पे रो रहा था क्योंकि वो खोया हुआ था, पेरेंट्स से बिछड़ा हुआ था। तो उसको जब हम पेरेंट्स के पास ले गए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उसके पेरेंट्स बाकी चीजों का टेक केयर करेंगे, तो हमारा काम था उसको वहां तक पहुंचा देना। तो उसी तरह हम लोग जो है यहाँ पे मेले में वो खोए हुए बच्चे जैसा हम लोग का हाल हो रखा है एक्चुअली। कैसा हाल हो रखा है? मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते छोटा सा, कि ये एक एक्वाटिक, एक फिश, मान लीजिए एक मछली को पानी से बाहर निकाल के जमीन पे रख देंगे, तो क्या होगा? वो मछली कंफर्टेबल हो पाएगी? वो छटपट छटपट करती रहेगी जब तक कि आप उसको कुछ भी पानी डाल दें, कभी उसको खिला दें, कुछ कर दें, कुछ भी, फिर भी वो छटपट छटपट। और उसको वापस अगर पानी में ले जाकर डाल दीजिए तो वो वापस एकदम कंफर्टेबल होगी, दौड़ने लग जाएगी, वो एकदम नॉर्मल, क्योंकि वो उसकी असली दुनिया है। उसकी असली दुनिया से हम उसको बाहर लाके यहाँ पे रख दें तो वो अनकंफर्टेबल है। उसी तरह हम लोगों का जो भी मिजरीज है हमारी लाइफ में, हम लोग मिजरीज के बारे में एक्चुअली बात नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो बट मिजरीज तो हम सबके लाइफ में है। शास्त्र ने बोला कि 4 तरह का मिजरी सबके लाइफ में है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु डेथ, और जरा मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज, और व्याधि मानी बीमारी, डिजीज। तो कोई भी कितना भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई धनी हो, दरिद्र हो, बुढ़ापा से बच नहीं सकता, बीमारी से बच नहीं सकता है, जन्म मृत्यु का साइकिल में वो फंसा हुआ ही है। 3 तरह के ताप होते हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो उन तापों से कोई नहीं बच सकता। तो ये जो मिजरी ऑफ लाइफ है, तो उससे हम लोग बच नहीं पा रहे, तो हम लोग मिजरीज में फंसे हुए। तो जब तक हम लोग इस लाइफ में यहाँ पे फंसे हुए हैं, तब तक मिजरीज में फंसे हुए। अगर हम लोग अपना ओरिजिनल जो हमारा घर है, भगवत गीता का स्टार्टिंग में 2nd चैप्टर में ये बोला हुआ है कि हम लोग यहाँ पे हैं बोल के मिजरीज में फंसे हुए। लेकिन जब हम इस साइकिल से निकल जाएंगे, हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले। हम लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन गलती से हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। उसका बैकग्राउंड और डिफरेंट है, उसका बहुत टाइम डिस्कशन के लिए लगेगा, तो हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ फंसे हुए। तो यहाँ से अगर हम लोग ओरिजिनली अपने ओरिजिनलिटी में अगर चले जाएंगे, हमारा जो एक्चुअल जो घर है वहां अगर पहुंच गए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, देयरफॉर व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ? हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है? तो हम लोग को ये सोचना चाहिए। यहाँ पे हम फिर और ये डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो हम लोग सोल की बात किए, फिर हम लोग सुपर सोल की बात किए, फिर हम लोग आइडेंटिटी की बात किए, हाँ प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध की, डेस्टिनी की बात की है। उसके बाद हम लोग गोल ऑफ लाइफ की बात की है। तो हमारा गोल ऑफ लाइफ एक्चुअली होना चाहिए टू कनेक्ट विद द सुपर सोल, यानी कि सोल शुड बी कनेक्टेड टू द सुपर सोल, सोल नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द सुपर सोल। ठीक है, जैसे हम बोले कि हमारा जो वो बच्चा मेले में खोया हुआ था, तो उसको उसके पेरेंट्स तक पहुंचा देने से वो खुश हो गया। उसी तरह हम
भगवान बोलते हैं ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मतलब प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है, भगवान बोल रहे हैं। यानी कि भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान 3 रूप में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। हाँ, एकदम शॉर्ट में ये थोड़ा और बताते हैं कि महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु। तो भगवान बोलते हैं महाविष्णु के रूप में मैं, हमारे भगवान के लोमकूप से एक ब्रह्मांड निकलता है, पैदा होता है। जितने भी ब्रह्मांड है वो भगवान से सृष्टि, भगवान के लोमकूप से सृष्टि होते हैं। और भगवान बोलते हैं फिर कर्णोदक्षा विष्णु के रूप में मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ, आई एंटर इनटू ईच एंड एवरी मटेरियल वर्ल्ड। और वहां जाके बोलते हैं मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ, इम्प्रेग्नेट करता हूँ। तो भगवान हमारे पिता है और प्रकृति को गर्भस्थ करके प्रथम जीव उत्पन्न करते हो ब्रह्मा जी के रूप में, और फिर ब्रह्मा जी बाकी आगे के जीवों को उत्पन्न करते। तो हमारे पिता तो हमारे जन्मदाता पिता है, ब्रह्मा जी को हम लोग पितामह बोलते हैं, और भगवान को प्रपितामह बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी सृष्टिकर्ता वो है, तो विष्णु। तो इसलिए भगवान इस तरह से इम्प्रेग्नेट करके हमको पैदा करते हैं, यानी कि भगवान हमारे पिता है, हम उनके पुत्र हैं। तो हम लोग उनके बिछुड़े हुए पुत्र हैं, मेले में बिछुड़े हुए पुत्र हैं। तो हमको वापस भगवान से मिलना है, यानी कि सोल को सुपर सोल के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर सोल को सुपर सोल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो देन वी कैन बी हैप्पी एक्चुअली। तो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, दैट शुड बी आवर गोल कि भाई। तो देखिए लास्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, ये एक छोटा सा पिक्चर है कि यहाँ पे एक लेडी है, ये पिंजरा है, तोता है इसके अंदर। ये एक्चुअली क्या करती है, मेले में जाके जाती है, वहां देखती है बहुत सुंदर एक पिंजरा, उसके अंदर तोता, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खरीद के ले आती है और घर में लाके, और या कोई दुकान से ही लेके आती है, मान लीजिए घर में उसको रोज पिंजरा का बहुत ध्यान रखती है, साफ सफाई रखती है, पेंट करती है, ये करती है। 15 दिन बाद देख रही है कि वो तोता जो है एकदम मुरझा गया, मरने वाला होता है, तो और फिर मर जाता है। तो वो दुकान में जाती है वापस, बोला अरे भैया ये तोता तो मर गया। तो बोला अरे आपने इसका ख्याल नहीं रखा। बोला मैं तो बहुत ख्याल रखती। बोला कैसे? तो बोला कि मैं तो रोज इसका पेंटिंग करती थी, सफाई करती थी, ये करती। बोला आपने पिंजरे का ध्यान रखा, तोते का ध्यान रखा? तो बोला अरे तोते का तो ध्यान नहीं रखा मैंने। तो बोला आपको पिंजरा का तो ध्यान रखने से केवल नहीं होगा, तोता का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तोता को आपने कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग जो बॉडी की बात कर रहे थे, वी आर नॉट दी बॉडी बट दी सोल। तो सोल इस बॉडी में है, तो ये बॉडी हमारा पिंजरा है और हम इसके अंदर में पंछी हैं, अंदर के पंछी। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे प्रत्येक जीव बॉडी के अंदर 2 चिड़िया बैठी है, पंछी मतलब 2 चिड़िया, एक है आत्मा, दूसरी है परमात्मा। तो आत्मा मतलब हम स्वयं, और बगल में परमात्मा बैठा हुआ है, भगवान। तो हमारे अंदर जो चिड़िया बैठी है, चिड़िया का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग खाली बॉडी का ध्यान रखते हैं, जो कुछ भी करते हैं बॉडी के लिए करते हैं, लेकिन सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैंने मैं जो हमारा असली परिचय है कि मैं सोल हूँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो सोल को उसका फूड देना पड़ेगा। उसका फूड क्या है? वो है हरिनाम संकीर्तन, यानी कि सुपर सोल के साथ कनेक्ट करना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एंगेज इन टू ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज टू लॉर्ड। भगवान की सेवा में हमको लगना पड़ेगा। और भगवान की सेवा का जो सबसे उत्तम, मोस्ट प्रीशियस जो वे है, दैट इज हरिनाम संकीर्तन। मैंने भगवान के नाम का संकीर्तन आप किसी भी तरह से करिए, आप नाम जप कीजिए, आप भगवान के बारे में चर्चा कीजिए, सुनिए। तो श्रवणम और कीर्तनम, तो भगवान के नाम का और भगवान के बारे में सुनना और बताना, कीर्तन। श्रवण और कीर्तन, श्रवण मतलब सुनना और कीर्तन मतलब सुनाना, दूसरे को सुना। तो दैट इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन कनेक्ट टू दी सुपर सोल। तो सोल को अगर हम सुपर सोल से कनेक्ट करेंगे, देन ओनली आवर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। अदरवाइज हम लोग ये जो माइजरीज का जो चक्कर है, साइकिल है, उसके अंदर हम फंसे रहेंगे। तो दैट इज हाउ वी कैन। ये चैतन्य महाप्रभु का जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला था, गृहे थाको बोने थाको सौदा होरी बोले डाको। मतलब आप कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी स्टेज में है, किसी भी स्टेट में है, आप केवल भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए। ये, और भगवान का नाम लेते रहिए का मतलब ये नहीं, कई लोग, बहुत हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब कि हर समय काम धंधा छोड़ के केवल इसमें थोड़ी लगते हैं। तो काम धंधा छोड़ के नहीं लगना है, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको केवल जोड़ना है। यू हैव टू कनेक्ट टू हिम। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप सब कुछ करते रहिए जो करना है, बस उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मतलब थोड़ा टाइम एक एलोकेट कर दीजिए कि मेरे को इतना टाइम उसको भी देना है, बस। उसको मतलब किसको देना है? मेरे को खुद को देना है, आत्मा को। हम लोग अभी आत्मा को एलियन समझ रहे हैं, वो एक्चुअली एलियन नहीं है। अभी हमको अगर समझ में आएगा कि आत्मा ही मैं हूँ, बॉडी नहीं हूँ। अभी तक मैं बॉडी को अपने आप समझ रहा हूँ और आत्मा को एलियन समझ रहा हूँ। अब हमको उल्टा कर देना पड़ेगा कि मैं तो आत्मा हूँ और बॉडी एलियन है। तो ये समझ के, और आत्मा के लिए थोड़ा थोड़ा उसको आत्मा का भोजन, यानी कि अगर हम देंगे, उसका अगर ध्यान रखेंगे, वी एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू लॉर्ड, तो हमारा ये प्रॉब्लम
सॉल्व हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट ब्रह्म जिज्ञासा की जो हम लोग बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली बेसिक क्वेश्चन क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को जाना कहाँ है और मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर हम ध्यान रखें तो हमारा लाइफ का पर्पस भी सर्व हो सकता है। और बाकी तो जो हम लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए, हम चाहे सीए का प्रैक्टिस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे इंजीनियर बने, चाहे एमबीए बने, कुछ भी करें, तो टू मेंटेन आवरसेल्फ इनटू दिस लाइफ, ये जो 60, 70, 80, 90 साल का या 100 साल का लाइफ मिला, वो इसके लिए है, टू टेक केयर ऑफ दैट। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक टाइम तो मैंने ऑलरेडी 15 मिनट ले लिया है, फिर भी अगर इफ एडमिन्स परमिट तो कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक अप, आई कैन टेक अप। मनीष जी, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप म्यूट में हैं। So if there's any question, please just type it in the chat box, or you can even unmute yourself. चैट बॉक्स में क्या है? एक सेकंड। सर बस यही हम भी बोलना चाह रहा था कि कोई को अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में कुछ है क्या? हाँ, आई हैव गिवन परमिशन टू एवरीवन, वेरी क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहे हैं अभी है, और वैसे भी टाइम एक्सीड हो गया है काफी, हाँ, यस यस करेक्ट तो सेशन को कंक्लूड करें। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। So I would just like to thank CA Manish Barelia and CA Arun Agarwal for sharing their profound wisdom. Their inspiring words and compassionate guidance have touched our hearts and encouraged us to embark on a more meaningful journey of self-discovery. Thank you, both of you, for enlightening us and blessing this gathering with your presence and warmth. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।